Okay, Yes, sir. right. Okay, so today we are going to study this chapter that is about the positive displacement machines. And this chapter is in your book. Chapter is chapter 12, right? In the book written by Stop and M.S.K. Okay, I intentionally skipped for the time being chapter 11. Okay, we will, because this is a bit a bit simpler and easier and easy to understand. So I thought that let us discuss this first, and then we will talk about rotodynamic machine. Basically, they are both these two are having relationship with each other, right? We will discuss maybe in today's class a little bit. So after chapter 12 we will discuss about chapter 11 and then chapter 13. Anyways, okay, now what positive displacement machines are? Before discussing positive displacement machine, let us have this slide that basically compares the positive displacement machines with rotodynamic or dynamic machines. Okay, so if you see here, we have two types of machines. Though we will discuss and emphasize in this particular, chapter 11 and 12, by machine actually we mean compressors and turbines, either power consuming or power producing machines. So mainly we will be discussing about these two things. So by machine, जहाँ पे machine की बात आती है ना, so by that actually we mean compressors and turbines, etc., of different types. So positive displacement and rotodynamic are dynamic machines. What positive displacement machines are, basically they operate by trapping a specific volume of air or any other working fluid. Okay, it may be water, it may be in any other gas, etc., and then forcing it into a smaller volume. Okay, so if you look at the examples, the examples of the positive displacement machines are reciprocating air compressor and rotary air compressors. Okay, so if you look at the reciprocating air compressor, what happens is that a specific volume of air is trapped, it is induced in the cylinder, right? And then the piston, it moves, let's say, from the bottom dead center to the top dead center, and it does a positive work on the air. Okay, and obviously the volume will decrease, right? Let me tell you, for example, if we have this is, for example, this is the piston and this is connecting rod, we have suction line and we have discharge here, for example. So let's say, for example, the piston is here. Okay, and it is moving in the downward direction, right, from the top dead center to the bottom dead center. Now what happens is that during this motion, a volume of air is coming here and it will fill this whole cylinder volume, right? So this is basically the volume is trapped. A specific volume is trapped. Okay, and then what happens that when this piston is at the bottom dead center, let's say, for example, here, so then it starts its journey from here, and obviously while this is moving in the upward direction, it forces this air. Okay, and due to that the volume is decreased, and obviously the pressure will increase for any compression process. If it is PV gamma is equal to constant, or PV is equal to constant, or PVN polytropic process is equal to constant. So for all these compression processes, P and V, they are inversely related. So this means that when the volume is decreased by forcing the air in the upward direction, okay, against this wall of the cylinder, then due to the decrement or decrease in volume, the pressure will increase. Okay, and at this delivery point you will be having higher pressure, right? So until unless
the induced volume that is reduced and delivered at higher pressure, it is not delivered, the other volume is not taken in, right? यानी जब तक आप उस वॉल्यूम को, उस एयर को जो है ना बाहर डिलीवर ना कर लें, तो बाकी जो है ना दूसरा वॉल्यूम इंड्यूस नहीं होता, it is not induced over here. So this is actually sort of intermittent operation or pulsating effect, right? तो यहाँ पे क्या होगा कि a specific volume is trapped, okay, and then work is done on that volume of air, and it is delivered at elevated pressure in case of compressor. So if a compressor or a machine works in this way, that volume is trapped and a positive work is done, or it is forced to have or to decrease the volume and deliver it at elevated pressure, these types of machines, they are known as positive displacement machines. And the examples are a reciprocating compressor and rotary compressor. Okay, so we will discuss reciprocating and rotary compressors in chapter 12, right? If you look at the dynamic or rotodynamic machines, what happens is that they don't trap the volume, okay, rather they operate by accelerating the air. A constant volume is coming continuously, right? If you look at a centrifugal compressor, okay, or centrifugal pump, and axial flow compressors or axial pumps, similarly mixed flow. So in all these, there is no trapping of a specific volume of the working fluid, rather they are just accelerating the air and converting the energy to pressure energy, right? If you look at, let's say, the centrifugal pump or centrifugal compressor, what happens is there is an impeller, right? And that impeller rotates, and there is basically a series of blades and vanes. So when the impeller rotates, the air comes or the water comes through the eye, and the impeller rotates, it imparts and it converts the kinetic energy or that rotational energy to pressure energy, okay. Means that basically the impeller having those blades, it accelerates the fluid, increases the velocity, and then the vane decelerates it, and that increase in velocity is basically converted to pressure. And even further, if you look at that duct, that is actually having a, what should I say, that is acting as a diffuser, okay, it is having diverging area, so the pressure is further increased, okay. So over there you can see that the volume is constantly coming, or the working fluid is constantly coming, there is no intermittency over there, okay. So those are known as rotodynamic machines, as opposed to positive displacement machines. So this is actually the thing that we will be discussing in chapter 11, centrifugal compressors, and similarly axial flow compressor and turbines and mixed flow, etc. And this is actually the topic that we will discuss in chapter 12. If you have any question in this slide, let me know. कोई question है इसमें? No, sir. No question. Okay, good. Then, as I told you, that here the emphasis is basically on compressors. Okay, so reciprocating air compressor and rotary compressors. You might have seen reciprocating compressor, where more pressure ratios are required, like in CNG pumps, okay. वहाँ पे आपके पास क्या है कि the pressure, let's say the CNG stations or the CNG owners, they are getting the natural gas at 3 or 4 psi, and they are increasing the pressure, or they are pressurizing the gas, okay, to 200 bar and 100 bar and something like this. So this is a huge pressure ratio, okay. So they are basically having reciprocating compressors over there installed, okay, in series. But as far as these fuel pumps, these petrol and these other stations are concerned, diesel pumps are concerned, so over there the pressure ratio is not the requirement, but the flow rate is the requirement, right? यानी क्या मतलब है कि वहां पे जो है ना, just you need to take the fuel from the reservoir, the tank that is down there in inside the ground, okay, under the surface.
सो जस्ट जो है ना वहाँ से तेल या फ्यूल जो है ना निकालना है, तो इसके लिए जो है ज़्यादा प्रेशराइजेशन की ज़रूरत नहीं है. सो फॉर दैट रीज़न rotary type or centrifugal type compressors are used over there, right? So let us look at some facts about the reciprocating air compressor and some terminologies that are involved over here. So the function of a compressor is to take a definite quantity of fluid and deliver it at a required pressure. Very much self-explanatory. Okay, it takes a specific volume. Okay, and the compressor basically reduces the volume, and as a result, the pressure is increased. That is basically our required pressure. The fluid could be of different type. Okay, it could be incompressible fluid, which you have studied in your fluid mechanics. Here we are discussing about the compressible fluid, so it could be ethane, methane, air, etc. Right, usually a gas and most often air. तो working fluid जो है ना आपके पास ये चीजें हो सकती हैं. To do this, mechanical work must be supplied to the air compressor by an electric motor. Obviously, I told you earlier that compressors are power consuming devices. So you need to work on this in order to elevate the pressure from P1 to P2, or in order to elevate the pressure, right? तो ये जो है ना power consuming device है. So for that reason you need to do work, mechanical work on this. ठीक है, work कहाँ से मिलता है? It is actually by for different arrangements this work can be, जिस तरह हमने पढ़ा था, if you remember, the turbine that is actually dedicated to power the axial flow compressor. Okay, so in other cases this arrangement could be different. Okay, then the air compressor does work on the air, right? Positive work on the air, and that work is basically known as indicated work. तो ये चीजें हैं. अच्छा, इसको आप देख ले. इंडिकेटेड वर्क है एक चीज, इंडिकेटेड वर्क. दूसरा है इंडिकेटेड पावर, मास फ्लो रेट. अगर इस वर्क के साथ आप मल्टीप्लाई करें ना, तो आपके पास पावर आ जाएगा, राइट? सो the work that is done by the piston, I should say, or by the compressor on the air, एयर के ऊपर जो काम होता है ना, उसको हम कहते हैं क्या चीज? इंडिकेटेड वर्क. ठीक है, कहां से हम इसको फाइंड आउट करते हैं? वी फाइंड दैट वर्क एनालिटिकली फ्रॉम द पीवी डायग्राम. ठीक है, वी विल सी इन द लेटर स्लाइड्स. So we can find out this indicated work, indicated power from the PV diagram. So for that reason, this diagram for the reciprocating air compressor, or if you show the cycle of operation of the reciprocating air compressor on a PV diagram, this diagram is known as indicated diagram. ठीक है, indicator diagram आप लोगों को पता होगा. ठीक है, indicator and diagram. आपसे अगर कोई पूछे कि भाई इंडिकेटर डायग्राम ड्रा करो, तो इसका मतलब क्या होता है कि पीवी डायग्राम आपने ड्रा करना है. ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको? हाँ जी, आर यू देयर? जी सर. Right. Okay. These are actually some examples where we have reciprocating compressor and axial flow compressor. Okay, and they are used, very well. Previously हमने discuss किया है. तो जस्ट एक जो है ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर जो है ना हमारे पास ये चीज़ है, और डायनामिक इम्पल्स जो है ना हमारे पास जिसको हम कहते हैं डायनामिक इम्पल्स, बेसिकली रोटोडायनामिक compressors. Okay, so one of them is axial flow compressor. यहाँ पे दिखाया गया है, right? Okay, so let us look at the working principle of the reciprocating air compressor, and you will be aware of this type of diagram because it resembles with the IC engine. You might have studied that in your previous classes, but the cycle of operation is very much different, right? So if you look at the cutaway section, and you can nomenclate different parts of this reciprocating air compressor. So this will be the suction line, this is the discharge line, right? And this one is head of the cylinder, and similarly this one is the, okay, this is the wall plate. Okay, both of them. And this bluish, this blue one, this is the suction wall, and this red one is a discharge wall. And the position of the suction wall and discharge wall
above the wall plate and this is below the wall plate. Okay, this is intentionally like this. There is a reason behind that, we will discuss. Then we have this connecting rod, very well known, and this is the crankshaft. This is a piston end, to provide to avoid this the leakage. We have these piston rings. Okay, so this is the diagrammatic representation as far as the reciprocating air compressor is concerned. Now, if you look at the working principle, what happens is how we can compress the air. Okay, in the reciprocating air compressor. So first what happens is that piston is moving downward in the cylinder. Okay, so when the piston, let's say for example initially it was here, right? Let's say for example the piston is here, right? So you can see that here we have actually atmospheric pressure, let's say P naught, right? And you can see that how the air is induced inside the cylinder, किस तरह induction होती है, right? So what happens is that when this piston just starts moving from the top dead center to the bottom dead center, right? So during this initial motion, a slight vacuum is produced over here. ठीक है, या प्रेशर जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस प्रेशर एंड वैक्यूम इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, स्लाइट वैक्यूम. So here you will be having, let's say for example P1. Okay, this atmospheric pressure is obviously greater than this slight vacuum, so there is a pressure gradient over here, right? And due to this pressure gradient, the this the air comes through this suction line and the suction valve, and it fills this cylinder as the piston is moving in the downward direction. Okay, तो आपके पास क्या होगा, the air comes here and the air is induced here. Okay, and it fills the volume of this cylinder. This is basically your induction stroke, right? Or you can say that this is actually the volume, the specific volume that is trapped inside the cylinder, right? So you can see here that in the suction valve, when the piston is moving downward in the cylinder, what happens is that first the suction valve opens. Okay, and pressure of the air in the cylinder is equal to the suction pressure. Okay, so here basically pressure of this means that if this happens that they are equal, okay, then the flow of air will not be like this. Okay, but there is a reason that there is a slight vacuum initially produced over here, right? And due to this pressure gradient the air is coming here. अच्छा, इसके और भी तरीके हैं, we will discuss these things later on. We are having superchargers and turbochargers. They are pushing, the mechanisms. There are mechanisms that push, the air inside this cylinder. Okay, so यहाँ पे जो है ना natural pressure gradient की बजाय there is actually the pressure gradient is created. Okay, so there is a mechanism for this, but initially you can just say that here due to the motion of this piston in the downward direction there is a slight vacuum created over here. Okay, and then there is a pressure gradient and the air comes here and it is induced and it fills the cylinder, right? Remember that while this induction occurs, the discharge valve will be closed. Okay, so there is no delivery to the storage tank, right? And then after that when the piston, okay, it completes the induction stroke, it traps that volume, then the next step will be the piston is moving up in the cylinder. Okay, from bottom to top dead center, right? So the suction valve is closed now, right? The suction valve जो है ना आपके पास close होगा, and the compression starts. Okay, and remember, if you see here, let's say for example the piston is here. Okay, and it starts its motion from this position in the upward direction. Okay, so obviously the pressure increases, the volume decreases. Okay, but these valves, either this one or this one, they are spring loaded. Okay, and they operate at a specific pressure level, right?
राइट। सो इस तरह नहीं है कि आपके पास जैसे ही जो है ना ये प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ये वाल्व खुलेगा, नो, it the pressure increases, and if it reaches the required pressure upon which this discharge valve can open, तो उस टाइप पे जो है ना आपके पास उस टाइम पे आपके पास ये जो डिस्चार्ज वाल्व है ये खुल जाएगा, एंड यू विल गेट द एयर एट द रिक्वायर्ड प्रेशर एंड यू कैन गेट इट टू एंड यू टेक इट टू द स्टोरेज टैंक, ओके, या सर्च टैंक पे जहाँ आप यहाँ पे इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल सिनारियो, induction, then compression, and then delivery. These are actually the three strokes as far as the basic cycle is concerned. ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको? जी सर। Right. Okay, there are some advantages and disadvantages, are some facts about the reciprocating air compressors. You can see that they are having low mass flow rate due to pulsating effect. Mass flow rate जो है ना इसका कम होगा, ठीक है। मास फ्लो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इट इज दे आर नॉट यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स, ठीक है। इसको जो है ना हम सीएनजी वगैरह में यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग लो मास फ्लो रेट। वजह क्या है? पल्सेटिंग ऑपरेशन है। पल्सेटिंग ऑपरेशन का क्या मतलब है कि पर साइकिल ऑफ द क्रैंकशाफ्ट या पर स्ट्रोक, ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, आपको सिर्फ एक ही डिस्चार्ज मिल रहा है, ठीक है। दिस मींस दैट व्हेन द पिस्टन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्चार्ज वाल्व इज क्लोज्ड, यू आर नॉट हैविंग एनी डिलीवरी ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये पल्सेटिंग इफेक्ट है या इंटरमिटेंट इफेक्ट है। इसकी भी रेमेडी है, वी आर हैविंग डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो हैव सम रेमेडीज, बिकॉज ये आपने देखा होगा फॉर टायर इन्फ्लेशन, there is a two stage or single stage reciprocating compressors are there, and they operate and constantly give the compressed air to the tank down there, जिसके ऊपर ये लगा हुआ है उसको constantly जो है ना ये प्रेशराइज्ड एयर देता है। तो वहां से जब आप एयर को लेते हैं ना तो उसमें पल्सेटिंग इफेक्ट नहीं होता, राइट, इट इज हैविंग अ कांस्टेंट सप्लाई। सिमिलरली इफ यू वांट टू इंक्रीज द मास फ्लो रेट, सो यू कैन यूज द डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये जो अभी हमने पढ़ा है दिस इज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सो लेटर ऑन वी विल सी, यहाँ पे है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी है, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्रॉबैक or is a limitation of the reciprocating air compressor. It is having high pressure ratios, मैंने डिस्कस किया आपको, ठीक है। हाई एफिशिएंसी है कंपैरेटिवली, ठीक है, and it is bigger in size and heavy, and it is having complex mechanical design, okay। यहाँ पे connecting rod by itself, its motion, it is a complex type of motion, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड और इस किस्म की ये सारे जो चीज़ें हैं ना, रिंग जो आपके पास है, पिस्टन रिंग्स एटसेट्रा, इवन बजाते खुद पिस्टन, दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन एज अपोज टू रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। रोटरी कंप्रेसर जब हम डिस्कस करेंगे यू विल सी दैट वी विल बी हैविंग जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो बल्कि ये है भी यहाँ पे ब्लोअर्स वगैरह में ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ वैक्यूम, राइट, सो आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज एक्चुअली अ कन्फाइंड स्पेस and you want to evacuate all the air over here, okay, you are actually doing some measurements over here, okay, that are affected by even the air, so you need to evacuate this air, okay, you evacuate this chamber, so you need to install compressor। अब ये कौन सा कंप्रेसर होगा, ठीक है, तो दिस मोस्ट ऑफन the rotary compressor, screw type compressors are used, right, and they are very small and simple in operation। सिमिलरली आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर और जो डीप फ्रीजर है उसमें देखे होंगे, सो हार्मेटिक टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं दे आर बेसिकली रोटरी कंप्रेसर्स, ओके। तो रोटरी कंप्रेसर जो है ना वो कंपैरेटिवली हाई मास फ्लो रेट होता है, ठीक है, और उसका कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है, ठीक है। ऑल्दो दे आर positive displacement machines, okay, but they are having continuous operation, right, and they are relatively low pressure ratios, उसमें pressure ratio बहुत कम होता है, ठीक है। और उसकी रीजन है, अच्छा, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन रोटरी कंप्रेसर 1 to 2.5, 1 to 2 एटसेट्रा, इसकी जो है ना ये रेशो है, राइट। देन वी हैव लो, इसकी लो एफिशिएंसी है, स्मॉलर इन साइज है, मैंने अभी आपको बताया, एंड दे आर आल्सो लाइट एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, एंड दे आर हैविंग सिंपलर मैकेनिकल डिजाइन,
Why simple mechanical design? Because they are having a cylinder, and inside that we have, let's say for example, an eccentric disc. This eccentric disc basically rotates and it pressurizes the air. Okay, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ये थोड़ा सा सिंपल है, राइट? Okay, so till now we discussed generally what the positive displacement machines are, what how you can compare it with rotodynamic machines, okay, and then examples of the reciprocating, sorry, this positive displacement machines, like we have reciprocating compressor and rotary compressors, okay, and we also discuss about uh, the working principle of reciprocating air compressor. Now this is important, the analysis objectives. Okay, remember we have actually two types of things. One is design and the other one is analysis. You know about this, right? Design basically क्या चीज है कि आपने एक नई चीज बनानी है. Let's say for example you are designing reciprocating compressor, so what should be the diameter of the what should be the dia of the cylinder, what should be the stroke of the cylinder, okay, what should be the material of the connecting rod. Okay, so sizing and selection of material, this is basically your design. अगर आपके पास ऑलरेडी एक चीज है, यू आर हैविंग reciprocating air compressor and you want to analyze that, ठीक है, ठीक, तो वहां पे जो है ना इन डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है ना फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एनालिसिस could be of different type, like you can also carry out some vibration analysis of the pump or compressor, etc. Okay, but here we are basically concerned with thermodynamic analysis of the reciprocating air compressor, ठीक है. तो उन thermodynamic analysis में हमारे objectives क्या हैं? सबसे पहले तो आपके पास क्या है कि to calculate air pressure and temperature before and after compression process, right? This is very important. Like for example, what is the temperature before the compression process? यहाँ पे आपके पास temperature T1 and P1 क्या है, right? You should know about this, right? And then after compression process, what should be or what are the P2 and T2? Okay, P2 तो obviously this is very important because this is your required pressure, ठीक है, ये आपको चाहिए. Why T2 is required? Because you later on we will see in multi staging that we will use intercoolers between the stages, ठीक है. तो intercooling के लिए आपको टेम्परेचर की भाई with the increase in pressure, how the temperature increases, okay, so you need to know about this T2 in order to design your cooling system for that, ठीक है, कि T2 ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो इसलिए जो है ना यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. सो दिस इज आर दीज आर वन ऑफ द एनालिसिस. एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये रोटरी पंप में हम लोग या रोटरी जो ये या स्क्रू टाइप जो है ना सर, इसमें हम लोग ये प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है सर? इसमें प्रेशर हम लोग गेन नहीं करना चाहते, ज्यादा करना नहीं चाहते? उसकी अपनी एप्लीकेशन है ना, वो जब हम वो पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. उसकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है. जैसे आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर रेशो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है. आउटडोर यूनिट है हमारे पास, इंडोर यूनिट है, एवापोरेटर एक्सेट्रा है, तो वहाँ पे जो है ना हमें ज़्यादा प्रेशर रेशो रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है. सिमिलरली मैंने आपको बताया कि लेट से फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग अ वैक्यूम इनसाइड द वैक्यूम चेंबर, तो उसमें भी हमें ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है. जस्ट वी वांट टू इवैक्यूएट लेट से फॉर एग्जांपल द एयर, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेशर रेशो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो इसलिए जो है ना हमारे पास वी हैव वेराइटीज ऑफ कंप्रेसर्स. तो किसी जगह के ऊपर एक यूज होगा, किसी जगह के ऊपर दूसरा यूज होगा. अच्छा, ओके सर. ये अगर आपका क्वेश्चन है कि भाई हम ये इससे ज्यादा यानी ज्यादा प्रेशर रेशो हम अचीव क्यों नहीं कर सकते, तो वी विल डिस्कस ओवर देयर, ठीक है. वहाँ पे इवन रिलेशनशिप से भी आपको पता चलेगा कि किस क्यों हम जो है ना इससे ज्यादा दिस वी कैन नॉट गेट मोर प्रेशर रेशो ओवर देयर. आई विल लेट यू नो, ठीक है, कि क्यों जो है ना हम इससे ज्यादा प्रेशर रेशो यानी नहीं हासिल कर सकते या नहीं करते, ठीक है. सो देयर इज बेसिकली लिमिटेशन ओवर देयर, यानी एक पैरामीटर अगर आप इंक्रीज करते हैं ना, तो दूसरा पैरामीटर जो है वो डिक्रीज होता है. सो वी नीड टू हैव अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू. सो फॉर दैट रीजन
हम जो है ना वो कंस्टेंट करते हैं लो प्रेशर रेशियो के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे वहां पे, राइट? ओके सर। Right. Okay. The other bullet is that obviously we need to calculate the indicated work or power. ये दूसरा हमारे पास एनालिसिस ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि you know very well that if you don't know about the indicated work or power that is consumed by the compressor, how you will select the motor for this? ठीक है, आप जो है ना बाजार से मोटर लेके आ रहे हैं अपने कंप्रेसर के लिए, so you should know that कितना पावर जो है ना आपके पास ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द पैरामीटर दैट यू नीड टू नो that what is the indicated work or power consumed by this particular compressor। Analytically हम इसको करते हैं। To obtain compressor efficiency, this is one of the parameter जो कि किसी भी मैकेनिकल इंस्टॉलेशन या मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए हम जो है ना कंप्रेसर की efficiency फाइंड आउट करते हैं। The last one or the last bullet is to calculate free air delivery। एयर डिलीवरी अगर आप देख लेना तो दे आर बेसिकली मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। व्हाई दिस इज नोन एज फ्री एयर, वी विल डिस्कस एट सम पॉइंट कि भाई इसको हम फ्री एयर डिलीवरी क्यों कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट बेसिकली वी वांट टू नो अबाउट द मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये चीजें हमें चाहिए। फ्री हम इसको क्यों कहते हैं कि भाई अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल कंप्रेसर लेते हैं ना तो हम कहते हैं कि भाई इसका फ्लो रेट क्या है, फ्री एयर डिलीवरी क्या है, एफएडी इसको कहते हैं, एफएडी। ठीक है, पावर कंजम्पशन इसकी क्या है, एफिशिएंसी इसकी क्या है, राइट? तो ये जो है ना हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनालिसिस जो कि हमें पता होनी चाहिए। होता बेसिकली ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग दिस एज योर कंप्रेसर एंड यू आर गेटिंग discharge from here at a specific pressure, right? Now if you are let's say measuring that discharge, ये discharge जो है ना आपके पास let's say एक storage tank में हो रहा है और वहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास वैक्यूम है, ठीक है, and you are measuring this discharge at vacuum, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10⁻⁵ टार या -10 टार या -10 तो बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, लेकिन लेट्स से इस वैक्यूम के ऊपर अगर आप इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एफ एडी नहीं होगा, फ्री एयर डिलीवरी नहीं होगी, ठीक है, ये डिफरेंट होगा। बट इफ यू आर मेजरिंग दिस यू नो डिस्चार्ज एट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर या एसटीपी जिसको हम कहते हैं, तो उस टाइप पे जब आप ये फ्लो मेजर करते हैं ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा और उसको हम कहते हैं एफएडी, फ्री एयर डिलीवरी। सो दिस इज बेसिकली द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, लेकिन यू आर मेजरिंग दिस यू नो एट एफएडी, ठीक है, सॉरी एट फ्री एयर, यानी मतलब एक जो है ना आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको मेजर करते हैं, तो इसलिए जो है ना इसको एफएडी कहते हैं। बाद में इसकी बात आएगी, हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द 4 एनालिसिस ऑब्जेक्टिव्स, okay, that we will be discussing in later slides कि भाई आपको इन चीजों का पता होना चाहिए ना। Obviously we are discussing this analytically, so we need to develop certain relationships, okay, from where you can find out the inlet and before compression and after compression, temperature and pressure, and we can develop certain formulas and relationships from where you can get the you know or you can calculate the indicated work or power, and obviously we need to develop certain relationships from where you can get the efficiency etc। तो ये जो है ना अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। Okay, now if you understand till this slide, we can move further, and you can see here that there are some basic components for reciprocating compressor, ठीक है। Although reciprocating compressor is a very complex you know machine, but it is having these basic 4 components जो कि अभी हमने पढ़ा भी है। One is the cylinder, the other one is the piston that is moving inside the cylinder, and then we have a connecting rod arrangement, okay, and obviously we have intake and exhaust valve. These 4 are the very important and basic components as far as the reciprocating compressor is concerned, right? Reciprocating air compressors can be classified into single acting or double acting। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, ओके, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग क्या है, ये जो आपके पास है ना, दिस वन इज सिंगल एक्टिंग reciprocating air compressor। Why? Because you know moving from let's say for example top dead center to bottom dead center and again from bottom to top, this is known as one stroke of the piston, isn't it?
इसको हम एक स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन कहते हैं। सिमिलरली दूसरी तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, व्हेन दिस, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है, पर रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट जब एक मरतबा रिवॉल्व करता है ना, तो ये एक स्ट्रोक अपना कंप्लीट करता है। सो यू कैन से दैट per stroke of the piston movement or per revolution of the crankshaft, if you are getting a single discharge, इसको हम कहते हैं single acting reciprocating compressor, okay, and per per revolution of this crankshaft or per stroke, okay, or per cycle of this piston movement, if you are getting two discharges, इसको हम कहते हैं double acting reciprocating compressor। ठीक है, ये यहाँ पे है। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर में क्या है, इट इज अ कंप्रेसर दैट हैज वन डिस्चार्ज पर रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट और पर साइकिल ऑफ द पिस्टन मूवमेंट, दोनों सेम चीज है। और डबल एक्टिंग कंप्रेसर क्या है, इट इज अ कंप्रेसर दैट कंप्लीट्स टू डिस्चार्ज स्ट्रोक्स पर रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। और फिर ये कहता है ना कि मोस्ट हैवी ड्यूटी, ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको ज्यादा फ्लो रेट चाहिए ना, हैवी ड्यूटी है, तो फिर जो है ना आप डबल एक्टिंग को यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है ना आपके पास ये है, दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ डबल एक्टिंग। ठीक है, रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर ज्यादा क्लियर नहीं है, बट आई कैन जस्ट पॉइंट इट आउट। ये आपके पास इंडक्शन लाइन है, ठीक है, राइट, और ये डिलीवरी लाइन है, राइट, एंड दिस इज द सिलेंडर and the piston is actually moving inside this cylinder. Now you can see that, let's say for example initially the piston was here, right, and it starts its motion from here to this position. Now can you see here, during this motion, right, so at this end it is delivering the compressed air, but here it is inducing the ऑर्डिनरी एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, while this motion, ठीक है, during this motion from here to here, at one side it is inducing the air and at other side it is delivering the air, ठीक है, to this delivery line. And let's say for example if it is moving in the downward direction, तो क्या होता है कि from here यहाँ पे इंडक्शन होती है और यहाँ से जो है ना आपके पास क्या होती है, डिलीवरी होती है। सो कैन यू सी दैट पर साइकिल ऑफ द पिस्टन मूवमेंट और पर रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट वी आर हैविंग टू डिस्चार्जेस। ठीक है, ऊपर जाता है तब भी आपके पास डिस्चार्ज है, नीचे जाता है तब भी डिस्चार्ज है। सो पर साइकिल ऑफ दिस पिस्टन मूवमेंट इफ इट इज हैविंग टू डिस्चार्जेस, इसको हम कहते हैं डबल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, इसकी कुछ एनिमेशन भी है, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लें। बल्कि आप खुद यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च कर सकते हैं कि सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग जो है ना किस तरह काम करते हैं, तो वहाँ पे आप देख भी सकते हैं, राइट। सो यू कैन सी हियर दैट इन अ डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर द इंडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ कंप्रेस्ड एयर अकर्स ड्यूरिंग एवरी स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड द इंटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर ऑफ स्प्रिंग लोडेड, ये तो मैंने आपको बता दिया, स्प्रिंग लोडेड होते हैं एंड दे ऑपरेट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जब वो प्रेशर वैल्यू जो है ना 10 हो जाती है तो वहां पे जो है ना वो ऑपरेट करता है, नॉट ऑल द प्रेशर वैल्यूज। ठीक है, फिर तो ये होगा कि भाई जैसे जो है ना ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो है ना आपके पास ये डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिलीवरी दैट इज नॉट एट द रिक्वायर्ड प्रेशर, दैट विल बी एट रिड्यूस्ड प्रेशर, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसलिए जो है ना क्या कहते हैं कि वाल जो है ना बंद होता है जब तक कि वो प्रेशर रिक्वायर्ड वो अचीव ना हो जाए, उसके बाद जो है ना ये वाल खुल जाता है और रिक्वायर्ड प्रेशर के ऊपर आपको एयर जो है वो सप्लाई होता है। ठीक है, राइट। इन दिस स्लाइड बेसिकली वी वांट टू discuss that for any thermodynamic analysis or for any analysis there are some assumptions, okay। तो assumptions जो है ना वो दो चीज़ों यानी दो तरीकों से हो सकती है या for two reasons हो सकती है। One is obviously if you are assuming something, so that assumption should be an educated assumption, right? It should not affect the overall analytical procedure of the overall analysis, एक। And the second thing is that it is very simple to assume something। ठीक है, like यहाँ पे क्या है, the assumption is that we are considering the working fluid as a perfect case। ठीक है, तो अगर perfect ना भी हो और it is nearly perfect, तो हम perfect case को जो है ना assume करते हैं। So
we have actually a very rich हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज़ बंद हो गई। ना जमंग जमंग नेट के तरह थे बच्चा, जमा उधर है, ताऊ समार रानी। it will add more precision to that. ठीक है। तो इनिशियली जो है ना सिंपल करने के लिए हम इजम्पशन करते हैं, उसके बाद जो है ना एफिशिएंसी या प्रिसीजन को एक्सक्यूज मी इंक्लूड सर। करते हैं। जी जी। सर आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, आपका स्क्रीन भी जो है ना वो शेयर नहीं है। अच्छा, वेट। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अभी तो आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं है। वेट। हाँ जी। यस सर, हो गया। Okay. I was telling you that for each and every thermodynamic or any other analysis, okay, we are having some assumptions. ठीक है। assumption क्यों हम करते हैं? एक क्वेश्चन arise होता है, तो assumption इसलिए हम करते हैं, very simply speaking, कि हमारे पास इससे सबसे पहले ये कि एनालिसिस आसान हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि फॉर आवर ओन ईज वी आर एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग द फैक्ट्स। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट। वी आर हैविंग एजुकेटेड assumptions. ओके, तो दो चीजें हैं। one is that we are having educated assumption, right? That doesn't affect the analysis too much. Okay, and the other thing is that we are assuming something, and then we define the efficiencies. Okay, and if you multiply those efficiencies with the results, so it makes the result very much precise. जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास in case of nozzles we were considering that the flow inside the nozzle is isentropic or reversible adiabatic, so S1 is equal to S2 is equal to S। ठीक है, ये एग्जाम्पशन हमारे पास थी। but if it is not even isentropic, ठीक है, तो then we can talk about the nozzle efficiency। ठीक है, तो nozzle efficiency की बात हमने की थी। ठीक है, so if you found out, let's say for example, that in the nozzle we are accelerating the fluid to, let's say, velocity c1, okay, so you can just multiply that nozzle efficiency with c1 and it will actually give you रिड्यूस्ड वेलासिटी। ठीक है, तो ये प्रिसाइज वेलासिटी जो है ना आपको फिर देगा। सो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी assumption है, वी आर कंसिडरिंग द वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, एज अ परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस की इक्वेशन जो है ना स्टेट, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको हम यूज कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास वेयर पी एंड वी एंड टी दे आर द प्रेशर, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ दिस वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, तो ये assumption हमारे पास है, राइट। नाउ इन the analysis objectives, our today's discussion will be about compressor without clearance volume, reciprocating air compressor without clearance volume, and reciprocating air compressor with clearance volume, and then we will talk about multi-staging, why we need multi-staging। okay, तो उसकी भी एक रीज़न हम डिस्कस करेंगे, and then we will discuss the multi-stage compression। okay, right। Actually this compressor without clearance volume is not a practical case, right?
अच्छा, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, कि व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, बिकॉज व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कंप्रेसर विद क्लियरेंस वॉल्यूम, तो वहां पे हमारे पास बात आएगी कि भाई व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम एंड व्हाई वी नीड दिस, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन लेटर स्लाइड्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम इज नॉट अ प्रैक्टिकल केस, ठीक है। क्यों नहीं है, वी विल डिस्कस, बट यू नो दिस इज अ सिंपल केस टू एनालाइज, ठीक है। इसको जो है ना पीवी डायग्राम के ऊपर शो करना भी आसान है, और टू फाइंड आउट यू नो द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स before compression, after compression you can find out the values. Similarly you can find out and you can calculate the indicated work and indicated power very easily, ठीक है। तो इसको जो है ना पहले हम डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल बी हैविंग सम मॉडिफिकेशन टू दिस compressor without clearance volume, okay, to make it suitable for compressor with clearance volume, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूले हम डिराइव करेंगे ना, या जो रिलेशनशिप्स, उसको हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे फॉर दिस सेकंड केस विच इज द प्रैक्टिकल केस, ठीक है। सो द कंप्रेसर्स बेसिकली इन एप्लीकेशन दे आर हैविंग क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है ना हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस लुक एट दिस वन, कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। इसकी समझ आ गई आपको मैं क्या कह रहा था? यस सर। ओके, now air compressors with clearance volume, without clearance volume, right? So if you look at this PV diagram, we need to show the cycle on this PV diagram, जो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास induction stroke है, then we have compression stroke, and then we have the delivery stroke. So that is represented on a PV diagram. इस diagram को हम कहते हैं indicator diagram, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया। The cycle of operation of a reciprocating air compressor is best shown on pressure volume diagram, and it is known as a indicator diagram for the compressor. Now the cycle comprises of three processes. If you see schematic diagram, so let's say initially for example आपके पास ये piston जो है ना यहाँ पे है, piston is here, okay, and it starts moving from this extreme left to right, ये लेफ्ट टू राइट जो है ना मोशन करता है। तो इस मोशन के दौरान क्या होगा, दिस इज इंडक्शन एंड दिस इज डिलीवरी वाल, सॉरी लाइंस, एंड दिस वन इज डिलीवरी वाल एंड दिस वन इज यू नो इंडक्शन वाल, ठीक है, या सक्शन वाल जिसको आप कहते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम दिस एक्सट्रीम लेफ्ट टू द राइट, this suction valve is open, the air fills this volume, okay, or traps this volume. So you can say that the motion from this extreme left to extreme right, यहाँ पे जितना भी आपके पास सिलेंडर का स्वीप है, सिलेंडर का डाया है, सिलेंडर का जो है ना वो साइज है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस the motion, okay, the air is induced, so this is actually known as induction stroke, ठीक है। ये इंडक्शन स्ट्रोक है, यू कैन सी इट हियर। अच्छा यहाँ पे ये शायद आपको ज़्यादा क्लियर ना हो, दिस इज बेसिकली ए एंड दिस वन इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। दिस टेम्परेचर इज T1 बिफोर कंप्रेशन, दिस टेम्परेचर इज T2 आफ्टर कंप्रेशन, दिस इज P एंड दिस इज V डायग्राम। दिस वॉल्यूम इज VB एंड दिस वॉल्यूम शुड बी, इसको भी V1 भी आप कह सकते हैं, VA भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रेशर इज P1 इनिशियल, और ये जो रिक्वायर्ड प्रेशर है डिलीवरी प्रेशर P2 है, और ये जो आपके पास जो है ना ओरिजिन है, राइट। और ये अच्छा, सो दिस वन इज इंडक्शन स्ट्रोक। नाउ you know this piston will move in this direction after this, okay, so the motion of this piston towards left, okay, up to this point, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट तक ये जो आपके पास मोशन है, दिस मोशन इज बेसिकली दिस इज एक्चुअली कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये कंप्रेस कर रहा है, पॉजिटिव वर्क इज डन on the air and the air is compressed, the volume is reduced and the pressure is increased. Now जब ये यहाँ पे पहुंचता है ना, यहाँ पे, तो अब ये जो प्रेशर ऑफ द एयर है ना, दिस एक्चुअली दिस रिक्वायर्ड प्रेशर
is the pressure upon which this delivery valve will open. तो ये जो है ना ये ओपन हो जाएगा and the air will be delivered at this delivery valve delivery line at that required pressure. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या होगा, this will be compression process. ठीक है, ये कंप्रेशन डिफरेंट हो सकता है. यू कैन हैव पोलिट्रॉपिक कंप्रेशन, यू कैन हैव आइसोथर्मल कंप्रेशन, यू कैन हैव दिस पीवी gamma is equal to constant, that is isentropic compression. ठीक है, और उसके बाद ये जो थर्ड स्ट्रोक है ना, दिस विल बी डिलीवरी स्ट्रोक, राइट. सो इंडक्शन, compression and delivery, and you can show it on the PV diagram. You can see here DA, ठीक है, ये DA आप देख रहे हैं, DA, this will be your induction stroke. यहाँ पे शायद होगा भी ये D to A is your induction stroke. Then after that A to B is a compression. ये compression जो है ना, PV n is equal to constant भी हो सकता है, polytropic, where n is the polytropic index, right. तो n की वैल्यू जो है ना, अगर आपके पास 1 हो तो ये PV is equal to constant होगा, ऐसा थर्मल प्रोसेस होगा. If your n is equal to 1.4, that will be n is equal to gamma, तो ये PV gamma is equal to constant होगा, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा. तो इसीलिए जो है ना इसको जस्ट पोलिट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है, ताकि दिस इज एक्चुअली जनरलाइज्ड कंप्रेशन. ठीक है, ए टू बी, ये ए टू बी इज कंप्रेशन स्ट्रोक. देन बी टू सी, दिस इज योर डिलीवरी स्ट्रोक. ठीक है, सो इंडक्शन, compression, delivery, induction, compression, delivery, induction, compression, delivery. This is basically the the cycle of operation that is shown on the PV diagram. यहाँ तक समझ आ गया आपको जी? एनी क्वेश्चन? आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. No question. नो क्वेश्चन, गुड. अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम आगे लेके जाते हैं, और वो क्या है कि भाई यहाँ पे we are talking about this indicator diagram, and obviously associated with this we are having indicated work. ठीक है, या indicated power भी आप दे सकते हैं. तो you need to refresh your knowledge कि भाई area under the curve on a PV diagram, ठीक है, it shows or it gives you the work done. ठीक है, या indicated work जो है ना आपको देता है. क्या मतलब है इसका? Remember, this is the induction, this is compression, and this is delivery stroke. तो ये जो आपके पास एरिया होगा ना, ये वाला एरिया जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, दिस एरिया अंडर द कर्व, ये जो आपके पास है, दिस इज एक्चुअली जितना भी आपके पास एरिया आता है, एरिया अंडर द कर्व, इट विल गिव यू द इंडिकेटेड वर्क. बात समझ आ गई? ठीक है, ये कहाँ से आया है? यू नीड टू लुक एट द बेसिक प्रोसेसेस. एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रल पीडीवी, इफ यू रिमेंबर, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो है प्रोसेसेस हैं, जिसमें एरिया अंडर द कर्व जो है वो वर्क डन के बराबर आता है. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, वहाँ पे वर्क डन किस तरह है. ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर 3 को आप रिफ्रेश करें, राइट. एनीवे, अब इस वर्क इस एरिया को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर. तो लेटर ऑन जो है आप उसको खुद इसमें देख लें. ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये एरिया? लुक, डायरेक्टली हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट, बिकॉज हियर एक्चुअली वी हैव दिस वन इज, ये जो आपके पास है ना, ये आई शुड राइट इट, ये है ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज ई, ई है, ये ई है, ये एफ है. So A, B, E, F. This is this area. I should say 1. ठीक है. Then आपके पास क्या है? This one, B, C और O, E. ये दूसरा एरिया है. इसको हम कहते हैं 2, right? And this third one is ये जो स्लिम सा आपके पास रेक्टेंगल है ना, ये वाला, आई शुड से ADOF, ये जो है, ये इसके बारे में कह रहा हूँ.
तो ये लेट से आपके पास एरिया 3 है, राइट, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, आई टोल्ड यू अर्लियर. So if you add 1 and 2 and you subtract area 3, तो आपके पास ये एरिया आएगा जिसमें हम इंटरेस्टेड है, और दिस एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू दिस इंडिकेटेड वर्क. और अगर इसके साथ मास फ्लो रेट आप मल्टीप्लाई करें तो इंडिकेटेड पावर आपको मिलेगा, विच इज वन ऑफ द एनालिसिस ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ये आगे स्लाइड में डिस्कस किया गया. अच्छा, ये वही चीज है, अच्छा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेसेस कि भाई इंडक्शन प्रोसेस किस तरह होता है और कंप्रेशन प्रोसेस किस तरह होता है और डिलीवरी प्रोसेस किस तरह होता है. सो ये हमने डिस्कस किए हैं. अच्छा, तो यू कैन जस्ट लुक एट देम कि भाई इंडक्शन है T1 होता है, P1 होता है, ठीक है, और डिलीवरी जो है T2 और P2 के ऊपर आपके पास होती है. एंड द प्रोसेस कुड बी दिस कंप्रेशन प्रोसेस, मैं आपको बताया कि इट कुड बी पॉलीट्रॉपिक, आइसेंट्रोपिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, तो ये आप खुद से देख लें. ये मैं आपको बता रहा था कि द इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल इफ यू वांट टू फाइंड आउट, सो यू नीड टू लुक एट दिस एरिया A B C D. ये मैं आपको बताया A B C एंड D, ये एरिया जो है ना आपने इस एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है. और कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ यू एड दीज टू एरियाज जो अभी मैंने आपको बताया 1 + 2 और 3 को अगर आप माइनस करेंगे, ये 3 एरिया है. अच्छा, A C O F, बल्कि ए डी है मेरे ख्याल में, ये डी है, हाँ C तो ऊपर है, ADOF ये एरिया है. तो इसको जो है ना हम माइनस करते हैं ADOF को. ठीक है, अब ये दो तो रेक्टेंगल है ना, कैन यू सी, ये भी आपके पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया यू नो वेरी वेल, इफ यू नो अबाउट टू साइड्स आप उसका एरिया जो है ना आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. और डाउन देयर आल्सो वी हैव दिस रेक्टेंगल. तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये साइड कितना है, ये साइड, दिस साइड इज बेसिकली योर P2, 0 से P2 तक है ना, तो इसका मतलब P2 - 0 = P2. लेंथ ऑफ लाइन ये है ना, ये P2 होगा, राइट. सिमिलरली ये जो इसका है ये साइड, इसको हम कहते हैं VB या V2 भी आप कह सकते हैं, VB. ठीक है, डिलीवर्ड वॉल्यूम ये इतना है, ये लाइन, तो ये VB है. तो इसका क्या मतलब है कि P2 VB, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. P2 VB यहाँ पे होगा ये. सिमिलरली एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या होगा, ये जो आपके पास है ना दिस लाइन, दिस इज P1 - 0 मीन P1, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन स्मॉलर. एंड यहाँ पे इंडक्शन वॉल्यूम कितना है, ये V1 कह सकते हैं या VA, जो भी आप कहें. ठीक है, सो P1 VA, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है, जिसको हम 3 कहते हैं. तो ये आपके पास आ गया. और ये जो आपके पास है ना एरिया अंडर द कर्व फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शायद लिखा भी होगा कि यू नीड टू लुक एट चैप्टर 3. ये हमारे पास जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस है ना, उसमें पीवी डायग्राम के ऊपर एरिया अंडर द कर्व पॉलीट्रॉपिक, आइसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किस तरह होता है, ये असल में 1/n-1 P2 VB - P1 VA है. इंटीग्रल का फार्मूला यूज होता है. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली दैट एरिया. इफ यू नो फर्दर सिंप्लीफाई दिस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या है, दिस इज योर n/n-1 और ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगा. नाउ इफ यू नो अबाउट द प्रेशर एंड pressure before and after the compression process and delivery volume and induction volume or induced volume, you can readily find out the indicated work per cycle. ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, it is a bit difficult to find out the ये वॉल्यूम तो फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान है, बट डिलीवर्ड वॉल्यूम जो है ना ये मुश्किल है. बाज़ औक़ात ये जो इंड्यूस्ड वॉल्यूम है, in this case this is actually the volume of the cylinder. बाद में जो है ना हमें पता नहीं होगा कि ये क्या होगा, लेकिन बहरहाल for this case this is actually the volume of the cylinder. तो ये तो आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, P1 should be known to you, right? and यहाँ पे जो आपके पास VB है, it is difficult to find this value. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि we use the relationships of the perfect gas. ये perfect gas है, right? P जिस तरह P = MRT होता है ना, so for this one before compression P1 VA = MRT1, P2 VB after compression MRT2. ठीक है, और where R is basically in kilojoule per kilogram Kelvin, 0.287 इसकी वैल्यू है. ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की.
तो अगर जो है ना आप इन प्लेस ऑफ P1VA ये पुट करें और इन द प्रीवियस फार्मूला एंड P2VB की जगह ये पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है ना इफ यू टेक द T1 कांस्टेंट, ठीक है, T1 को आप कांस्टेंट लें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्यों हम इसको इस इक्वेशन में लेके आते हैं? बिकॉज you know we want to have temperature ratio over here, ठीक है। because temperature ratio over here को हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम if you remember T1 over T2 is equal to P2 over P1 P2 over T1 divided by P2 by P1 for isentropic process this was gamma minus 1 बाय गेमा, ठीक है। तो इस तरह पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिस विल बी n-1 बाय n, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ T2 बाय T1 जो कि यहाँ पे है, इसकी जगह जो है ना फिर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। यू कैन राइट दिस वन, ठीक है। बहरहाल MRT1 की जगह अगेन अगर आप ये लिख लें तो नाउ दिस इक्वेशन 5 इज इन सच अ फॉर्म दैट यू कैन readily use this because at right side you have the variables or the parameters either known or you can make them known easily. So इसलिए जो है ना इस फार्मूले को हमने थोड़ा सा या रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई किया है। So if you want to find out or calculate the indicated work per cycle, n is the polytropic index, ठीक है, P1 is the pressure, PVA मैंने आपको बताया कि इसको फाइंड आउट करना जो है ना आसान है क्योंकि ये सिलेंडर वॉल्यूम है। इफ यू सी यहाँ पे हमने VB को ओमिट किया है, अच्छा, एंड मैंने आपको बताया था कि टू फाइंड आउट द डिलीवर्ड वॉल्यूम इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू टू फाइंड, ओके, और टू मेजर। इसलिए जो है ना VB को हमने इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो लिखा है, ठीक है। तो प्रेशर रेशियो जो है ना आपको पता होना चाहिए कितना रिक्वायर्ड प्रेशर आपके पास है, कितना इनिशियल प्रेशर है। इफ यू नो अबाउट योर प्रेशर रेशियो, ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नोन, यू कैन readily फाइंड आउट भाई कि हमारे पास इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल कितना आएगा। दिस इक्वेशन 5 will give you that thing. And as I told you earlier that if you want to find out or to calculate the indicated power, just you need to multiply m dot, that is the mass flow rate, with this one. तो आपके पास जो है ना ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी अगर m dot आप मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास पावर का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। वट एवर इज इजियर यू कैन यूज दीज फार्मूलाज। यहाँ तक आपको समझ आ गई? यस सर। ओके ओके, नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट, अच्छा, तो एक चीज जो है ना हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर, दूसरा आपके पास क्या था, इंडिकेटेड वर्क और पावर, दो चीजें हमने फाइंड कर दी। थर्ड वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? वी हैव एक्चुअली मैकेनिकल एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली है क्या चीज, लेट मी टेल यू लाइक दिस। बेसिकली वी आर हैविंग, यहाँ पे आपके पास मोटर है, वी आर हैविंग द मोटर इज बेसिकली गिविंग पावर टू द शाफ्ट एंड इट गिव्स द पावर टू द पिस्टन, ठीक है। सो इंडिकेटेड पावर क्या है? इंडिकेटेड पावर क्या होगा? दैट इज द पावर, ओके, आर द वर्क पर यूनिट मास फ्लो रेट that this piston is doing on this the working fluid, that is air, ठीक है। ये इसके ऊपर जितना वर्क करता है ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दिस इंडिकेटेड पावर, ठीक है, वर्क पर यूनिट मास फ्लो रेट, इसको हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं। जितना इंडिकेटेड वर्क होता है, वर्क डन बाय द पिस्टन और बाय द कंप्रेसर ऑन द एयर, उसको हम कहते हैं इंडिकेटेड वर्क। और पावर जो है ना कि इसके साथ रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो पावर हमारे पास आती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली द पावर ओवर हियर, ओके, ड्यू टू सम फ्रैक्शन there will be some losses over here, ठीक है, because there are rotation, there are motions, okay. So जो आपके पास कनेक्टिंग रॉड वगैरह जो है इसमें फ्रैक्शन वगैरह होगी, तो this shaft should provide, okay, some extra power to this, ठीक है। तो क्या मतलब है कि शाफ्ट का पावर क्या होगा? एक तो ये इंडिकेटेड पावर प्लस इट शुड प्रोवाइड द पावर दैट शुड ओवरकम द फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन पावर कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द शाफ्ट पावर
दैट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ इंडिकेटेड पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी आपके पास, दैट इज द इंडिकेटेड पावर, दिस इज द पावर रिक्वायर्ड, ओके, आर द वर्क डन पर यूनिट मास फ्लो रेट बाय द पिस्टन और बाय द कंप्रेसर ऑन द एयर in order to elevate the pressure from P1 to P2। ये वो आपके पास पावर है। शाफ्ट पावर क्या है, दिस इज एक्चुअली द पावर दैट गिव्स यू द इंडिकेटेड पावर प्लस इट ओवरकम्स द फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, आर द फ्रिक्शन, तो ये ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल समहाउ आप इसको इग्नोर करते हैं एंड यू आर टेकिंग 100% efficiency, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, you are indicated the shaft power is your indicated power। ठीक है, तो frictions are already there। ठीक है, फ्रिक्शन जो है ना आपके पास होगा, तो इसका क्या मतलब है कि आपके को जो अल्टीमेटली इंडिकेटेड पावर मिलेगा ना, दैट विल बी लेस देन द रिक्वायर्ड। तो उसका नुकसान क्या होगा कि आप जो यू आर रिक्वायर्ड P2 जो कि आपने मतलब अचीव करना है, उससे कम प्रेशर के ऊपर आपके पास P2 बार के ऊपर आपके पास जो एयर होगा वो डिलीवर होगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द, तो यहाँ पे द लॉसेस फ्रॉम द शाफ्ट टू द पिस्टन, ठीक है, इट इज tackled in by defining the mechanical efficiency। Similarly, who will power this shaft, the motor। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास यहाँ पे आती है, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड द मोटर बेसिकली कन्वर्ट्स दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द शाफ्ट रोटेशन। ठीक है, सो द लॉसेस इन बिटवीन शाफ्ट एंड मोटर, ठीक है, उसको जो एफिशिएंसी ओवरकम करेगी ना, उसको हम कहते हैं मोटर एफिशिएंसी। ठीक है, व्हाट विल बी द मोटर एफिशिएंसी देन, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इंडिकेटेड पावर बाय शाफ्ट पावर, राइट, एंड मोटर एफिशिएंसी इज शाफ्ट पावर बाय इनपुट पावर। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको बताया ये, ठीक है, शाफ्ट पावर और ये इंडिकेटेड पावर, एंड दिस इज मोटर पावर। तो इन दोनों का रेशो जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी, इन दोनों का रेशो मोटर एफिशिएंसी। ठीक है, बहरहाल ये जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को। अच्छा, सर ये मोटर एफिशिएंसी थोड़ा दोबारा बताइए सर, ये मोटर एफिशिएंसी। मोटर एफिशिएंसी इस तरह है ना, देखिए आपके पास लेट्स से इफ यू आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो वहां उसको जो है ना इनपुट क्या आता है, इनपुट पावर इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, P इज इक्वल टू VI, इलेक्ट्रिक पावर उसको आता है, राइट। वो इलेक्ट्रिक पावर जो है ना बेसिकली कन्वर्ट होता है मैकेनिकल पावर में। ठीक है, द शाफ्ट रोटेट्स, शाफ्ट रोटेट करता है, P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। नाउ this is the input power, that is this one, this is the shaft power, that is this one। ठीक है, obviously there are actually some आप देखेंगे आगे, the motor efficiency is very high but still it is less than 100%, so the losses over there, okay, those are basically taken in by defining this motor efficiency। ठीक है, तो इनको इनपुट पावर कितना मिल रहा है, वो शाफ्ट को कितना पावर दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशो होगा ना, उसको हम कहते हैं मोटर पावर। समझ आ गई? यस सर, राइट। अच्छा, ये कुछ रिलेशनशिप जो है ना मैंने यहाँ पे पुट की है कि भाई जिस तरीके से इफ यू नो यू कैन रिलेट द टेम्परेचर रेशियोज टू प्रेशर रेशो फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो इस तरीके से जो है ना ये एक फार्मूला है जहाँ से आप वॉल्यूम रेशो टू प्रेशर रेशो को आप कर सकते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर रेशो को वॉल्यूम रेशो जो है ना आप फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, राइट। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स, तीन स्टेट्स है हमारे पास। अच्छा, फ्री एयर है, बिफोर कंप्रेशन है, एंड आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, फ्री एयर में आपके पास अगर प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो सारा क्या है, एटमॉस्फेरिक है, वी नॉट पी नॉट, और इस तरीके से जो है ना आपके पास टी नॉट होगा। और अगर आप जो है ना ये पी वी इज इक्वल टू आर टी आप कर लेना, ठीक है, तो पी नॉट वी नॉट बाई आर टी नॉट। ठीक है, टू मेक ये एम है ना, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, तो एम इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी, इस तरह है मास। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट है हमारे पास। ठीक है,
तो फ्री एयर में आपके पास क्या होगा, पी नॉट, ये पी वी इज इक्वल टू आर टी है, पी नॉट वी नॉट बाय आर टी नॉट। बिफोर कंप्रेशन क्या होगा, इसी चीज को, ये तो P1 है, ये टेम्परेचर T1 होगा, ये इंड्यूस्ड वॉल्यूम होगा ना बिफोर कंप्रेशन, VA, बल्कि ये आप VA लिख सकते हैं। सिमिलरली आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा, ये P2 हो जाएगा, ये VB हो जाएगा, ये R है कांस्टेंट है, ये T2 हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द स्टेट्स। अच्छा ये क्यों, और इस ये इक्वल क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मास फ्लो रेट जो है ना कांस्टेंट, बल्कि आगे यहाँ पे है भी, मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस टू मेक द मास फ्लो रेट कांस्टेंट, एम डॉट, ये वॉल्यूम जो है चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, बट द मास फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज एम नॉट, दिस इज M1 एंड दिस वन इज M2। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास मास फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट, एंड इफ यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, तो ये आपके पास क्या होगा, M नॉट होगा, दिस विल बी M, आई शुड से लेट्स से MA होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, MB होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू M। टू मेक ऑल दीज एज कांस्टेंट, तो ये रिलेशनशिप जो है ना आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, यू कैन जस्ट लुक एट दिस। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, सो वी कैन जस्ट सॉल्व दिस सिंपल एग्जांपल based on the relationship that we developed in the previous slides। ठीक है, तो look, a single reciprocating compressor takes 1 cubic meter air per minute, ये वॉल्यूम है, अच्छा बल्कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, क्यूबिक मीटर पर मिनट है ना, तो इतना वॉल्यूम जो है ना ये ले रहा है, 81.013 बार, ये क्या है, दिस इज योर P1। ठीक है, इनपुट प्रेशर है, और ये आपके पास T1 है, एंड डिलीवर्स इट 87 बार, तो ये P2 है। इसका मतलब ये कि प्रेशर रेशो कितना है, P2 by P1, दिस इज 7 डिवाइड बाय 1.013, ये आपके पास प्रेशर रेशो है। Assuming that the law of compression is PV 1.3 is equal to constant, इसका मतलब ये है कि polytropic index क्या है, 1.35, and that clearance is negligible without clearance volume। कैलकुलेट द इंडिकेटेड पावर, तो इंडिकेटेड पावर जो है ना, जो फार्मूला हमने डेवलप किया था उससे आपने फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप मास फ्लो रेट फाइंड आउट करें। अच्छा, तो P इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू M डॉट R T1, सॉरी, इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें आपके पास नोन है। ठीक है, और हाल ये आपने फाइंड आउट किया इन kg पर मिनट, यहाँ पे T1 आप केल्विन में इसको कर लें, and you know very well that T2 by T1 is equal to P2 by P1 n minus 1 by n। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो टू फाइंड आउट T2 यू कैन यूज दिस, P2 by P1 भी आपके पास है 1.35, ये चीज़ है, बहरहाल ये आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, एंड द फार्मूला इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नो अबाउट T1 T2 T1 एंड R इज आल्सो नो, M डॉट, ये सारा कुछ, तो 4.238 किलोवाट इज द इंडिकेटेड पावर। ठीक है, इतना पावर आपको चाहिए अगर आपने प्रेशर को 1.013 बार से 7 बार के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो इतना पावर आपको चाहिए होगा। अब इस पावर को लेके यू कैन सेलेक्ट द द मोटर फॉर दिस। ठीक है, ये जो है ना सिलेक्शन आप कर सकते हैं। दूसरा जो है ना, ये भी आप करने एग्जांपल है, इसमें एफिशिएंसीज वगैरह आपको गिवन है, तो ये भी मेरे ख्याल में आपका, इसमें स्ट्रोक वगैरह को इसने फाइंड आउट करना है। लुक, इफ द कंप्रेसर ऑफ एग्जांपल 1 इज टू बी ड्रिवन एट 300 रिवोल्यूशन पर मिनट, अच्छा ये आरपीएम आपको गिवन है, वहां पे आपको वो वॉल्यूम इस तरह गिवन था ना, दैट वाज 1 क्यूबिक मीटर पर मिनट। अब ये कहता है कि ये 300 रिवोल्यूशन पर मिनट करता है। ठीक है, तो बहरहाल that was actually you can find out the value for this one, and is a single acting single cylinder machine है। कैलकुलेट सिलेंडर बोर रिक्वायर्ड, सिलेंडर बोर का मतलब ये है D, आपको सिलेंडर बोर नहीं होता, दिस इज एक्चुअली सिलेंडर। ठीक है, तो इसका जो डाया होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर ये कहता है कि एज्यूमिंग अ स्ट्रोक टू बोर रेशो ऑफ 1.5, ठीक है, स्ट्रोक टू बोर रेशो, स्ट्रोक L
टू बोर रेशो इज 1.5/1, ठीक है। तो L 1.5 D के बराबर है। स्ट्रोक, ये स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, ये जितना जो है ना ये मोशन करते हैं, मैंने आपको बताया एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, इन दोनों के दरमियान एक्सट्रीम लेफ्ट, ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि भाई जो है ना हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, जितना वॉल्यूम ये स्वीप करता है ना, तो यहाँ पे विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम तो आप चले कह सकते हैं दिस इज योर स्ट्रोक, लेकिन लेटर ऑन विल वी बी डिस्कसिंग अबाउट क्लियरेंस, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन से दैट दिस इज बेसिकली योर स्ट्रोक। तो स्ट्रोक डायरेक्टली जो है ना आपको गिवन नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर या जो आपके पास वो है बोर है, वो आपको गिवन है, ठीक है। तो इसका रेशो इतना है, ठीक है। ये एस्पेक्ट रेशो बताता है ना, यू नो वेरी वेल कि भाई इसका जो है ना लेट्स से लेंथ इतना है और इसका जो है ना विड्थ, ये रेक्टेंगल के लिए होगा ना, विड्थ इसका इतना है, तो इसीलिए जो है सिलेंडर के लिए L और ये D होता है, ठीक है। ये एस्पेक्ट रेशो आपको पता होगा, ये गिवन है बेसिकली 1.5। एनीवे, कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड, पावर ऑफ मोटर आपको चाहिए। अच्छा, पावर ऑफ मोटर, इसमें वही बात आ जाती है क्योंकि एफिशिएंसीज भी इसने दी है। ड्राइव द कंप्रेसर इफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है ना आपको गिवन है, कितना है 0.85, फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, मोटर की एफिशिएंसी जो है वो 90 है, ठीक है, 90%। तो कहता है कि आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट दिस बोर, ठीक है। कैलकुलेट द, अच्छा पावर ऑफ द मोटर भी करना है, और मेरे ख्याल में ये आपने ये भी कैलकुलेट करना है डायमीटर को। तो यू कैन सी हियर वॉल्यूम डील्ड विद पर यूनिट टाइम, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है पर मिनट। अच्छा, अगर पर साइकिल आपने करना है ना, या पर रिवोल्यूशन अगर आपने करना है, तो 1 को डिवाइड करेंगे, 300 आरपीएम है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये पर साइकिल आपके पास आएगा। पर मिनट से पर साइकिल के ऊपर आप आ जाएंगे। बहरहाल ये सिलेंडर वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ड्रान जो है ना विदाउट क्लियरेंस, जितना वॉल्यूम ड्रान होगा ऑफ द एयर, दैट वॉल्यूम इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, तो यहाँ से व्हाट शुड आई से, यानी इनडायरेक्टली हम फाइंड आउट करते हैं सिलेंडर वॉल्यूम को, ठीक है। वॉल्यूम ड्रान पर साइकिल, वॉल्यूम ऑफ द एयर ड्रान पर साइकिल वो इतना है, तो वो वॉल्यूम बेसिकली है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। और यू नो वेरी वेल के सिलेंडर वॉल्यूम का फार्मूला ये है π/4d²L, where D is the bore and L is the stroke। और ये तो हमने फाइंड आउट किया कि इसके बराबर है। L क्या है, L is 1.5D, तो L की जगह आप 1.5D पुट करें, यहाँ पे इसने पुट किया है। तो ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन इज D, दैट इज द बोर। बहरहाल उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 141.4 स्क्वायर मिलीमीटर या 14.1 सेंटीमीटर। अच्छा, पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, ठीक है। लुक, मैकेनिकल एफिशिएंसी किस चीज के बराबर है, दैट इज इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर, ठीक है। तो शाफ्ट पावर को पावर इनपुट टू द कंप्रेसर भी हम कहते हैं। अच्छा, इनपुट टू द कंप्रेसर, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे लेके आए तो इसको हम कहते हैं शाफ्ट पावर या पावर इनपुट टू द कंप्रेसर। ये इनपुट है, आउटपुट तो इंडिकेटेड होगा ना फ्रिक्शन को निकाल के। तो बहरहाल ये मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको गिवन है 0.85, और इंडिकेटेड पावर प्रीवियस एग्जांपल में हमने फाइंड आउट किया ये इसके बराबर है। तो आपके पास पावर इनपुट टू द कंप्रेसर जो होगा ना वो क्या होगा, यानी शाफ्ट पावर क्या होगा 4.99 किलोवाट, ठीक है। इतना पावर जो है ना आपने सप्लाई करना है, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में वी वर कंसिडरिंग दैट मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 100%, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी जो है ना ये 85% है, तो तभी जो है ना आपने ज्यादा पावर वो उसको देना होगा। एंड मोटर पावर रिक्वायर्ड है, तो मोटर पावर में आपके पास यू नो मोटर एफिशिएंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर डिवाइड बाय मोटर पावर, ठीक है, इनपुट। तो शाफ्ट पावर अभी हमने फाइंड आउट किया 4.99 डिवाइड बाय मोटर पावर, ये हमें पता नहीं है, अलबत्ता मोटर एफिशिएंसी हमें पता है दैट इज 0.90। तो यहाँ से जो है ना मोटर पावर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी 5.54 किलोवाट। सो ये जो मैंने आपको बताया था ना ये वाला, तो 5.54 किलोवाट है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा
ठीक है। एफिशिएंसी अगर मोटर की एफिशिएंसी 0.9% है तो यहाँ पे जब आता है ना तो 4.99 हो जाता है, और जब यहाँ पे आता है तो ये 4.238 हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली द लॉसेस इन बिटवीन दिस एंड दिस डिफाइंड बाय मैकेनिकल एंड मोटर एफिशिएंसीज। ठीक है जी। सर आज के लिए इतना काफी नहीं है सर। अच्छा चलें ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। वैसे भी जो है ना मिड टर्म का कोर्स जो है ना, ये दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म कोर्स, राइट? ये जो अभी आज की क्लास में हमने पढ़ा है। तो बहरहाल आई विश के ये कंडीशन ऑफ फॉर मिनिमम वर्क हम डिस्कस करते, लेकिन चले वो प्रीवियस सेक्शन के साथ भी यही तक हमने किया था। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ओके, आफ्टर योर मिड टर्म एग्जाम। लिमिट में इंक्लूड नहीं है सर ये सब्जेक्ट में? ये आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म। ओके सर। और सर ये पेपर पैटर्न क्या होगा सर? वो मैं स्टूडेंट इंशाल्लाह आपको को अपडेट करता हूँ, एक क्विकली अपडेट करूंगा इंशाल्लाह, आज या कल मैं अपडेट कर लूंगा। और सर ये पेपर टाइमिंग बहुत शॉर्ट नहीं दिया है सर, 2 घंटे, तो कम से कम 3 घंटे तो आम रूटीन में थे सर। बस उसके मुताबिक पेपर होगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। राइट, ओके जी, चलें क्विट करते हैं। अल्लाह हाफिज।